Good morning, children. So today we are going to study chapter number 10, a strange wrestling match. Kindly mute yourself, everyone, and listen me carefully. Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. Unbeatable, it means that person cannot be defeated. That person cannot be defeated. It's called unbeatable. Then Vijay Singh was a bit boastful at times. Swati Rawat, kindly mute yourself. Mute yourself. There, Vijay Singh was a bit boastful. Boastful मतलब होता है डींगे हाँकने वाला व्यक्ति. तो विजय सिंह जो था वो क्या करता था? डींगे हाँकता था. At times मतलब वो कई बार लोगों के सामने अपनी डींगे हाँकता था, अपनी सेठी बघारता था. Once he took it upon himself to fight a ghost. एक बार उसने क्या कर लिया? उसने अपने ऊपर एक चैलेंज, स्वयं के लिए ऊपर एक चैलेंज ले लिया कि मैं किससे लड़ूंगा? एक भूत से फाइटिंग करूंगा, उससे रेसलिंग करूंगा. चलो देखते हैं आगे क्या होता है. There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. And Vijay Singh, people said, was born a wrestler. Born मतलब होता जन्मजाति wrestler था. And could beat all over the wrestler in the world. एक बार की बात है, एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह. वो बहुत ही क्या था? लंबा तड़ंगा, मैसिव शोल्डर्स, मतलब उसके जो कंधे थे वो बहुत ही क्या थे? चौड़े थे और मजबूत थे. मस्कुलर आर्म्स, बहुत उसकी जो आर्म्स थी, उसकी जो भुजाएं थी वो कैसी थी? मस्कुलर थी, मजबूत थी. And he towered over other like a giant. जब वो लोगों के सामने खड़ा होता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो सबके ऊपर बैठा हुआ है. And people said, लोग कहते थे उसके बारे में कि वो जन्मजाति रेसलर है. And could beat all other wrestlers in the world. और लोग ये भी कहते थे कि वो दुनिया के जितने भी रेसलर हैं सभी को हराने में सक्षम है. This पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situation. ये बात सच था कि वो बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी थी. कई बार उसकी ये कमियां उसे क्या करती थी? उसे एक ऐसी awkward situation में डाल देती थी जहां से वो अपने आप को निकाल नहीं पाता था. मतलब awkward situation में मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर उसने करा तो करा क्यों. Then he was fond of boasting. वो डींगे हाँकने का बड़ा शौकीन था. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. After drinking many glass of milk, so one day he was sitting at the marketplace and he was sitting beside other men of the same village. So after drinking many glass of milk, he suddenly proclaimed मतलब होता है डींग हाँक करके किसी बात का घोषणा करना. So उसने क्या घोषणा करी? That why are people afraid of ghosts? लोग भूतों से डरते क्यों हैं? I am not, मैं नहीं डरता हूँ. I wish I met a stout ghost and I would teach him a lesson. So he challenged all the ghosts in the front of other men. So he was just boasting in front of the other men that he could fight with a ghost and he could also beat the ghost. Then there were murmurs of applause. Applause मतलब लोग क्या करने लगे? जोर जोर से उसकी तारीफें करने लगे. As well as apprehension among the young men. लोगों के बीच ये एक बहस का मुद्दा भी बन गया. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet the ghost. They roam there freely. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. Would you really want to go there? Vijay Singh's mighty heart missed a beat or two. Why did he have to boast? Now, अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो लोगों के दिमाग में आया कि चलो इसको किसी घोस्ट के बारे में बताते हैं. गांव में तो भूत का होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है. तो उनके लिए एक भूत था जो कि उनके लिए कॉमन भूत था. वो कौन सा था? एक हॉन्टेड डेजर्ट, एक जगह थी जिसको वो लोग हॉन्टेड डेजर्ट बोलते थे. हॉन्टेड मतलब होती है डरावना
और डेजर्ट मतलब मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ था वो क्या था, डरावना था। तो एक हॉन्टेड डेजर्ट है, अगर तुम रात में वहाँ अकेले जाओगे सो यू विल श्योर टू मीट द घोस्ट, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे भूत मिलेंगे। और स्ट्रेंज श्रेक्स मतलब तुम्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें और मोल्स मतलब कराहने की आवाज़ें आएंगी, दर्द से चित्कारने की आवाज़ें आएंगी। तुम लोगों ने देखा नहीं है कि जो भूतिया फिल्में होती हैं उसमें चिल्लाने वाली आवाज़ आती है, बीच बीच में फालतू के साउंड होते हैं वो लोग। तो बस वैसे ही कुछ साउंड वहाँ पर सुनाई देगी। और वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो? एंड ट्रैवलर्स जो वहाँ के लोग हैं मतलब जो ट्रैवलर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि लूटेड एंड किल्ड मतलब कि उन्हें वहाँ पर जाकर लूट लिया जाता है और उन्हें जान से मार दिया जाता है। सो क्या घोस्ट क्या करते हैं, वो लोगों को जान से मार देते हैं और उन्हें उनका सामान लूट लेते हैं। Why did he have to boast? अब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे यार मैंने इन लोगों के सामने डींग हाकी ही क्यों। Yes, I have heard of haunted desert। इसमें डींग हाकने वाली क्या बात है? मैंने बहुत सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में। He said nonchalantly मतलब बिना ध्यान दिए उसने ये बात कह दिया। I think it's just a fairy tale। मुझे लगता है ये सब कल्पना है, ये सब लोगों की कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, सपने हैं लोगों के। Oh no, said one of his admirer मतलब कि उसके एक एडमायरर ने, उसके एक प्रशंसक ने कहा It's true, नहीं ये सच है। This place is 10 miles to the west on the road to जैसलमेर। ये जैसलमेर से 10 मील दूर है। And the landmark is an ugly black rock। वहाँ पर जो लैंडमार्क लगा हुआ है उसका भी कलर कैसा है, ब्लैक ब्लैक है, जिससे ये पता चल जाता है कि दिस एरिया इज डेंजरस। सो ट्रैवलर्स वुड बी अवेयर that if that area is dangerous so they won't go through the way। So black rock with the look like the head of the camel। जो वहाँ का जो ब्लैक रॉक रखा हुआ है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो कैमल के हेड जैसा दिखता है। Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course ghost। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे मतलब उस लैंडमार्क के अगर आप आगे जाओगे तो आपको केवल बालू मिलेगी। देन वाइल्डरनेस मतलब कि आपको जंगली जानवर, छोटे छोटे जानवर मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, हाँ भूत भी मिलेंगे। नाउ रीड। Almost the entire village turned up. थोड़ा और जोर से यहाँ के पढ़ोगे आप। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. Just then, an old woman came forward and thrust a small packet into his hands, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. As he walked, the night deepened. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. The old woman was well known for her eccentricities. As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. Vijay Singh, you will get lost in the desert. Come this way. I am your friend, Natwar. At once, Vijay Singh realized it was not his friend, but a ghost. Trying to sound brave, he called back. Where are you, my dear Natwar? It's dark and I cannot see you. Come here and show me the way. Like all wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. Okay, now, so all of them now he admitted that he would go to fight with the ghost. Almost the entire village turned up मतलब सबके सब चालू हो गए। That evening to bid farewell to विजय सिंह। सबके सब उसको क्या करने आ गए, सबके सब उसको टाटा बाय बाय करने आ गए
उसे फेयरवेल देने आ गए विजय सिंह, क्योंकि वो क्या करने जा रहा था, वो घोस्ट से लड़ने जा रहा था। एंड ही वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, वो वेस्ट पश्चिम की ओर, जहां पर वो भूतिया इलाका था, वो वहां की ओर जा रहा था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन come forward and thrust a small packet into his hand, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. तो उसी वक्त एक बुढ़िया आई, उसने एक छोटे से पुटली, छोटी सी पोटली, एक छोटा सा स्मॉल पैकेट, एक पोटली ये उसके हाथ में दिया, विजय सिंह के हाथ में दिया, और वो वहां से चल पड़ा। कौन चल पड़ा? विजय सिंह चल पड़ा कहाँ की ओर? डेजर्ट की ओर चल पड़ा। रेड सनसेट मतलब जब शाम की समय होती है, जब सनसेट होता है तो इट गॉट्स रेड, ओके, तो वही वो पूरा रेड हो जाता है, तभी वो डेजर्ट की ओर निकल पड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो एट नाइट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो क्लास, एज ही वॉक द नाइट डीपेंड, जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है, रात दिन पर दिन, इट बिकेम डार्कर एंड डार्कर every moment. The moon was bright and stars shone clearly in the Rajasthan sky. So the area was Rajasthan, and the sky over the Rajasthan was very clear, that the moon was shining brightly and the stars were also twilighting in the good shine. So that still a few miles short of his destination. अभी उसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कुछ समय बचा हुआ था। सो द विजय सिंह रिमेम्बर्ड द वन ओल्ड मैन्स पैकेट, अचानक उसे ओल्ड वुमन के दिए हुए उस पैकेट की याद आ गई। सो ही ओपनड इट एंड फाउंड, सो ही वाज क्यूरियस अबाउट टू सी व्हाट इज गिवन इन द पैकेट बाय द ओल्ड वुमन। सो ही ओपनड एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट, एक छोटा सा नमक का टुकड़ा, वो दिल्ली वाला नमक होता है ना, वो डली वाला नमक था उसमें, एंड एन एग, और एक अंडा था उसमें। द वुमन वॉज वेल नोन फॉर इसेंट्रिसिटीज का मतलब होता है सनकीपन। इसेंट्रिसिटीज मतलब क्या होता है? सनकीपन। तो वो औरत गांव में अपने सनकीपन के लिए फेमस थी, कि वो जानती थी कि लोग ये मानते थे कि वो औरत क्या है, सनकी है, थोड़ी सी दिमाग से मेंटल, तो लोग उसे नहीं मानते थे, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और उसने विजय सिंह को लाकर वो पैकेट दे दिया था। विजय सिंह को भी क्या लगा कि अरे वो सनकी औरत है, क्या उसकी बात पे क्या ध्यान देना। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस, ठीक है, जैसे ही वो अंदर घुसा डेजर्ट के, उसे एक वॉइस सुनाई, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। पीछे से आवाज आई, क्या आवाज आई? विजय सिंह कॉल करती हुई, और उसने कहा कि यू विल लूज योर वे इन द डेजर्ट, आई कैन टेल यू द वे टूवर्ड्स द डेजर्ट, एंड आई कैन रीच यू टू योर डेस्टिनेशन, एंड आई एम योर फ्रेंड नटवर। सो द घोस्ट हैज टोल्ड हिज नेम एज नटवर। At once the Vijay Singh realized that it was not his friend but a ghost. So that time the Vijay Singh, he was very smart and he could understand that he was the ghost. Then trying to sound very brave. तो अब चूंकि भाई वो तो क्या था, वो एक पहलवान था, तो पहलवान को तो सबके सामने बहादुर दिखना पड़ता है ना, तो वो भूत के सामने अपनी बहादुरी दिखाने लगा। क्या? Trying to sound very brave, he called back. उसने भी उससे बड़ी ही बहादुरी से बात करा। क्या बात करा? Where are you, my dear Natwar? It's dark and I cannot see you. देखो बड़ा अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। Come here and show me the way. मेरे पास आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। Like all the good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. Actually वो चाहता था कि वो उसके करीब आए और वो उसे धर दबोचे, है ना, वो उसे धर दबोचे। Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face. उसका चेहरे के रंग उड़ गया, विजय सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। And declared, you are just, उसने के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बोला, फिर भी ब्रेव होकर बोला, you are just a plain lying ghost. तुम तो बिल्कुल एकदम बेकार, एकदम फेक घोस्ट हो, मतलब कि तुम में वो बात ही नहीं है घोस्ट वाली, तुम तो एक फेक हो, फेक घोस्ट हो। Anyway, कोई बात नहीं, now I don't have to walk all night. चलो मुझे रात भर चलना नहीं पड़ेगा।
एंड आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तो तुम्ही से मिलना चाह रहा था, मतलब कि मैं तुम्ही से मिलना चाह रहा था, अब मुझे तुम्हारी तलाश में और आगे नहीं भटकना पड़ेगा। नॉट यूज टू इंसल्ट, अब घोस्ट जो था वो कभी किसी की इंसल्ट नहीं सुना था कि कोई उसे फेक घोस्ट कहे। अब यहाँ पे देखो घोस्ट के लिए एक रिडिक्यूलस मोमेंट आ गया। द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि घोस्ट को किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घोस्ट देख के या तो डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या उनको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन यहाँ विजय सिंह ने ही उसको हार्ट अटैक दे दिया था घोस्ट को। People generally started back in horror and when they meet him, जनरली लोग क्या करते थे, उससे जब मिलते थे तो डर जाते थे। But the Vijay Singh was very brave because he was a wrestler and he could fight any kind of person. Then read. यहाँ करते हैं, यहाँ कैमरे में भी दिखना चाहिए, है ना? हाँ। They often faint, but here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. It did not make sense. Really, I don't know why you longed to meet me, the ghost said. That proves, said Vijay Singh in the bold voice, that you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thoughts. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with the men. I want to fight a ghost. The ghost was speechless, marshalling his ghostly wits. He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. Appearances can be defective. Vijay Singh said, take your own case. You claim to be Natwar. Actually, you are a rascal of a ghost. If you doubt my strength, let me give you a demonstration of it. Okay. So then, generally क्या होता था, लोग उसे देखकर बेहोश हो जाते थे, they often fainted, but here was the unfeeling creature. Unfeeling मतलब उसे वो इतना sensitive भी नहीं था कि वो डर जाए. And he was unfeeling creature claiming that he wanted to meet ghost. It did not make sense. First time it happened with the ghost, and was totally uncommon that a man is wishing to meet a ghost. Generally people avoid the ghost if it comes to them. But this time a wrestler who wanted to meet the ghost, and this time the host was puzzled that the man who is not even brave enough to meet with a ghost, and the person is wishing to meet with me. So it was totally uncommon for the ghost. That proves, विजय सिंह ने बोला, इस बात से पता चल जाता है really I don't know why you longed to meet me, the ghost said. Ghost ने कहा, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, ये तो बताओ. That proof, इस बात से पता चलता है ना, बड़े ही बोर वॉइस में उसने बोला, मतलब कि बड़े ही आराम से, बिल्कुल एकदम कूल वॉइस में उसने बोला, that you are a stupid ghost. तुम एक बेवकूफ और मूर्ख भूत हो. The least a ghost can do is to read a man's thought. लेकिन मैंने तो सुना था कि भूत किसी के भी मन की बात जान लेते हैं, और तुम मेरे मन की बात भी नहीं जान पाए कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ. इसका मतलब तो तुम पक्का ही क्या हो, एकदम बेकार भूत हो, किसी काम के लायक नहीं हो. तुम्हें भूत किसने बनाया? However, a worthless ghost like you is better than no ghost. चलो कोई नहीं, मुझे किसी घोस्ट से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे जैसा एकदम नकारा घोस्ट ही मुझसे मिल गया. चलो कोई नहीं, चल जाता है, काम चल जाएगा मेरा. The fact is, कारण ये है that I am tired of wrestling with men. मैं लोगों से लड़ के थक गया हूँ. अब मैं किससे कुश्ती करना चाहता हूँ? मैं अब भूतों से कुश्ती करना चाहता हूँ. The ghost was speechless. घोस्ट के साथ आज तक कभी नहीं कहा किसी व्यक्ति ने कि वो उससे लड़ना चाहता है, तो वो उसकी जबान बंद हो गई. उसके पास उसकी बातों का कोई भी आंसर नहीं था.
मार्शलिंग द घोस्टली विस्ट, मतलब अपनी बुद्धि को लड़ाते हुए, दिखाते, मार्शलिंग मतलब दिखाते हुए, उसने ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय स्कॉर्नफुली इन द आई, उसने अपनी चाल भिड़ाई, उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर मैं इसकी आंखों को घूर कर देखूंगा तो ये डर जाएगा और फिर मैं इसके साथ आराम से लड़ लूंगा। लेकिन फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, और उसने बड़े ही आसानी से कहा, किसने कहा, घोस्ट ने कहा कि पर तुम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगते हो मेरे जितना, और अपनी आंखों को उसकी तरफ घूर कर दिखाया। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज हो सकते हैं, उनसे धोखा हो सकता है आपको। तो विजय सिंह ने उसे जवाब दिया कि अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, कई बार आपका अपीयरेंस, आप किस तरह से दिखते हो या आपके नए नक्श कैसे हैं, इससे आपको धोखा हो सकता है। जरूरी नहीं कि पतला दिखने वाला इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता। विजय सिंह से टेक योर ओन कोर्स, देखो तुम अपने आप को देख लो। तुम कहते हो कि ये कहते हैं कि मैं कमजोर, मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने आप को देखो ना। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम कहते हो कि तुम नटवर हो, मतलब तुम घोस्ट हो, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, लेकिन तुम तो बहुत बड़े वाले मूर्ख हो, मतलब तुम सारे भूतों में सबसे मूर्ख वाले भूत हो, और तुम कहते हो तुम नटवर हो। लेकिन नटवर के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन तुम तो बहुत ही मूर्ख आदमी हो, मतलब भूतों में सबसे मूर्ख भूत हो तुम। देन इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पे जरा भी डाउट है, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, चलो मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा नुमाइना करा देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें लड़ कर दिखा देता हूँ। 10-50 पे क्लास चलेंगे, 10-40 पे फ्री हो ना। नेक्स्ट पढ़ो। Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost, and squeezed it hard. It is filled with fluid. See if I am wrong. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. Vijay Singh snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. At once the yellow yolk oozed from around his fingers, and the cracking of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it well. Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. Okay. Then Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. विजय सिंह ने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ उठाया, किसमें से, बालू से। टेक दिस, पकड़ो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, घोस्ट को दिया, एंड स्क्वीज इट हार्ड, और उसे क्या किया, कहा कि इसे जोर से दबाओ, अपने हाथ से इसे क्या करो, दबाओ, चकनाचूर कर दो। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, देखो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। इफ आई एम रॉन्ग, देखो तुम, मतलब कि अगर मैं झूठा हूं तो तुम करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर दम होगा स्क्वीज करने का तो तुम इसमें से दबाकर फ्लूइड निकाल लोगे। ये था एक चैलेंज, घोस्ट को चैलेंज किया। विजय सिंह चैलेंज द घोस्ट दैट इफ ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ ही कुड स्क्वीज द small rock and he can ooze the fluid from the rock. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. जिस वक्त जो घोस्ट था
वो उसको स्क्वीज करने में बिजी था। पहले तो वो उसे एक हाथ से स्क्वीज कर रहा था, फिर दोनों हाथों से स्क्वीज करने लगा और फिर दम लगाने लगा, लेकिन उससे वो स्क्वीज नहीं हुआ। अरे भाई, पत्थर का टुकड़ा स्क्वीज कैसे होगा? चाहे आप कितने भी मजबूत हो, स्क्वीज कैसे होगा? इसी बीच में चुप्पे से उसने अपने जेब से वो नमक का जो डंप था, नमक का जो टुकड़ा था और एग था, उसे अपने जेब से बाहर अपने हाथों में रख लिया। विजय सिंह स्नैच द रॉक। उसने, विजय सिंह जब घोस्ट नहीं, ही वॉज नॉट एबल टू स्क्वीज दैट रॉक, ही स्नैच्ड, उसने छीन लिया वो रॉक और अपने हाथों में रख लिया। अपने हाथों में पहले ही उसने अंडा और नमक का जो वो था उसको रख लिया था, और फिर उससे जो छीना हुआ वो पत्थर का टुकड़ा था उसे भी ले लिया। एंड प्लेस्ड इट बिटवीन द बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। At once the yellow yolk oozed from the around his fingers, and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. अब जो अंडा था, जो एग था, वो क्या होने लगा? वो टूटने लगा। तो ऐसा लगा जैसे कि वो पत्थर टूट रहा हो, और जो उसमें से येलो यॉल्क था वो उसके हाथों उंगलियों से बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था सुनने में और देखने में, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने दबाकर पत्थर को क्या कर दिया हो? तोड़ दिया हो, क्रश कर दिया। The ghost was so astonished. Astonished means very surprised. The ghost was very surprised and he was overwhelmed that the person, the Vijay Singh, is able to crush a rock with his hands. And now Vijay Singh, the ghost, he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand. उसने ये नहीं ध्यान दिया कि विजय सिंह जमीन में नीचे झुक रहा है अपने हाथों को क्लीन करने के लिए। एंड डिस्पोजिंग ऑफ टेल टेल शेल। अब जो टेल टेल शेल थी, जो सेल थी, जो अंडे के जो टुकड़े थे, उसको उसने क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया, बालू में छुपा दिया। विजय सिंह then picked up another piece of rock. विजय सिंह ने दोबारा एक पीस ऑफ रॉक उठाया and gave it to the ghost. उसके बाद दूसरा पत्थर फिर दिया घोस्ट को। And without a word the ghost took it. बिना किसी बात के घोस्ट ने उसे लिया, छुआ and peered at it. विजय सिंह put his hand into his pocket to take out the lump of salt. उसने क्या किया? उसे देखा और उसे वापस दे दिया। और विजय सिंह ने क्या किया? अपना जेब पॉकेट में हाथ डाला और उस नमक के टुकड़े को बाहर निकाला। This is only a stone, protested the ghost, and anyway it is too dark to see. Never heard of a ghost who can't see in the dark. Remind Vijay Singh that stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see. Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. He handed over the stone to Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. I can see that you are not going to be a worthy opponent. What is the use of wrestling with a weakling whom I can Speak louder, beta. in a minute? So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powered stone, mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength. The ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark, but perhaps he could be tricked in other ways. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you. I admit to being defeated, but where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow." Now, truly elated,
Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people. The ghost bowed in agreement, but silently vowed to kill Vijay Singh. In the night, he led him to his house in the cave. Okay. Now, अब उसने क्या बोला, उसने सॉल्ट निकाला एंड दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। ये एक स्टोन ही तो है और वैसे भी इतनी अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब विजय सिंह ने बोला, रिमार्क मतलब उसे चेताया, याद दिलाया, देखो नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क। मैंने तो कभी नहीं सुना कि घोस्ट को रात में दिखाई नहीं देता। That stone which you hold in your hand contains salt. जो तुमने अपने हाथ में जो स्टोन लिया हुआ है वो एक उसमें क्या है, सॉल्ट है। क्रम्बल इट एंड सी, उसे चकनाचूर करके देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, क्योंकि उसने जो पत्थर उसे दिया था वो तो रियल का पत्थर था और उसके हाथ में जो पत्थर था वो कौन सा था, वो सॉल्ट था। एंड ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने विजय सिंह को वो पत्थर पकड़ा दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब तो भूत को भी अपनी पावर्स, अपनी शक्तियों पर क्या होने लगा, विश्वास टूटने लगा उसका कि वो सच में एक भूत है भी या नहीं। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्थी ओपोनेंट। मुझे लग रहा है कि तुम एक अच्छे रेसलर नहीं बन पाओगे, मतलब मैं तुम्हारे साथ लड़ूं ये मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। What's the use of wrestling with a weakly whom I can floor in a minute? एक ऐसे नकली और एक कमजोर आदमी से लड़के मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें एक बार में ही धूल चटा दूंगा। So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. उसके बाद विजय सिंह ने क्या किया, उस नमक के जो सॉल्ट लंप था उसको उसने जोर से क्रश कर दिया और जो स्टोन उसने दिया था, मतलब कि जो घोस्ट ने दिया था, उसने अंधेरे में कहीं गिरा दिया और उसके सामने नमक के लंप को, इट मीन्स द लंप ऑफ सॉल्ट को उसने अपने हाथों से क्रश करके उसे गिरता हुआ दिखा दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड, उसके बाद उसने अपना हाथ बाहर निकाला एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर्ड स्टोन। उसने अपना हाथ निकाला और कहा, देखो टेस्ट करो, ये देखो ये स्टोन नमक का था या नहीं, टेस्ट करो। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told. Mesmerized मतलब होता है किसी चीज से बिल्कुल क्या हो जाना, मुग्ध हो जाना, मतलब किसी की बातों से बिल्कुल क्या हो जाना, खुश हो जाना, बिल्कुल मेस्मराइज हो जाना, बिल्कुल एकदम उसका दीवाना हो जाना, ठीक है। तो उसकी बातों से वो क्या हो गया, बिल्कुल मोहित हो गया, बिल्कुल उसके मोहित हो गया। एंड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, मतलब उसके पास क्या थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है अनकॉमन स्ट्रेंथ थी, उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो बहुत ही कम लोगों के पास होती हैं। सो द घोस्ट डिड व्हाट ही वाज टोल्ड, जो भी उससे कहा गया उसने किया, मतलब सॉल्ट को चाटने के लिए उसको बोला गया, टेस्ट करने के लिए बोला गया तो उसने करा। अलार्म शॉट थ्रू हिम, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया है। दिस मैन कुड इजली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। अब उसे लगा कि अगर मैं रात में इसके साथ रेसलिंग करूंगा तो हो सकता है ये मुझे हरा भी दे। बट परहैप्स, लेकिन शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन इसे मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ कुछ अलग तरीक़ों से। एज्यूमिंग अ सर्वाइव मैनर, ये सोचकर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिला। एंड आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। बट वेयर यू विल गो टू नाइट, अब तुम रात में कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम वहाँ पे आराम कर लो। एंड यू कैन लीव टुमारो, कल तुम चले जाना। नाउ ट्रूली एलेटेड, विजय सिंह ने कहा, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, मैं तुम्हारे स्वागत को मना नहीं कर सकता। बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, ठीक है, कल तुम मेरे कैदी बनकर मेरे साथ गांव वालों के सामने चलना, ताकि गांव वालों को मैं ये बता सकूं
कि मैं भूत से लड़कर आया हूँ। बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर एंड आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू द पीपल। द घोस्ट बाउड इन दैट एग्रीमेंट। उसके बाद घोस्ट जो था वो उनकी बातों को मान गया, बट साइलेंटली वॉट टू किल। लेकिन पहले तो उसकी बात को मान गया, लेकिन मन ही मन उसने ये प्रतिज्ञा करी कि वो विजय सिंह को रात में ही जान से मार देगा। एंड ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। और वो उसे रात में अपने गुफा की ओर ले गया। Okay, class for today this much only. Tomorrow we'll continue this chapter. Thank you everyone.